سال کا مل جانا، ایک لمحے کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک ایک منٹ کی قدر ہونی چاہیے۔ ایک منٹ کی قدر اس مرنے والے سے پوچھو جس مرنے والے کی سانس اکھڑ رہی ہو، وہ تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے ایک لمحے کی زندگی دے دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے ماں، بچے، باپ سب ٹھہر کر اس مرنے والے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، زندگی کی تمنائیں کر رہے ہیں۔ اس ایک منٹ کی قدر مرنے والے سے پوچھو، اس 5 منٹ کی قدر ایکسیڈنٹ میں مرنے والے سے پوچھو، اگر وہ 5 منٹ پہلے گھر میں ہوتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اس 5 منٹ کی قدر ہاسپٹل میں مرنے والے عورتوں اور بچوں اور جوانوں سے پوچھو، ڈاکٹر جب کہتی ہے 5 منٹ پہلے اگر آپ پیشنٹ کو لا لیتے تو تمہارے بچے کی جان بچ جاتی، تمہارے ماں کی جان بچ جاتی، تمہارے شوہر کی جان بچ جاتی، تو 5 منٹ پہلے اگر آ جاتے تو جان بچ جاتی تھی۔ وہ 5 منٹ کی قدر اس مرنے والے پیشنٹ اور اس مرنے والے ایکسیڈنٹ میں جوان سے پوچھو۔ وہ 1 سال کی قدر اس نوجوان طالب علم سے پوچھو جو 10th فیل کر دیا ہو، جو انٹر کی ڈگری فیل کر دیا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ 1 سال فیل ہونے کی وجہ سے پورا سال بیکار رہا، نیکسٹ پروموشن نہیں ملا، نیکسٹ کالج پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ 1 سال میں اگر وہ پڑھ لیتا، پاس ہو جاتا تو اس کا معیار بدل سکتا تھا، اس کو پروموشن مل سکتا تھا، وہ کالج کے بجائے ڈگری میں رہتا تھا، لیکن فیل ہونے کی وجہ سے وہ 1 سال وہ برباد کیا ہے۔ تو وہ 1 سال کی قدر اس نوجوان طالب علم سے پوچھو، اس ہفتے کی قدر ان ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے مریضوں سے پوچھو جو مہینوں ہفتوں ہاسپٹل میں بیماری میں مبتلا ہو کر، ڈاکٹروں کے کھلونے ہو کر، ڈاکٹروں کے کھلونے بن کر وہاں پر آئی سی یو میں اور وہاں پر جنرل وارڈوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 1 مہینہ گزر گیا ہے، ابھی تک علاج نہیں ہوا ہے، ہفتے گزر گئے ہیں، پورا دکان بند کر ہم یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ ان ہفتوں کی قدر ان پیشنٹوں کی، ان ہاسپٹلوں میں رہنے والوں اٹینڈروں سے پوچھو کہ ان ہفتوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ 1 سال کا مل جانا یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ہرگز ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ جب اپنے رعایا کے ساتھ محل سے باہر نکلتے ہی فقیر آ گیا، آ کر مدد مانگی، 2 روٹی دے دو، 5 پیسے دے دو، تو اس وقت بادشاہ تکبر سے اس کو بھگا دیتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو جانے کے لیے کہتا ہے، وہ چلے جاتا ہے فقیر۔ بعد میں تھوڑی ہی دیر گزرا، ابھی جو روڈ پر آیا ہے، آنے کے بعد سامنے سے ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور آ کر بادشاہ کے گھوڑے کا لگام پکڑ کر کہتا ہے، رکو، مجھے تم سے کام ہے۔ تو سب بادشاہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیا کام ہے، کیوں مجھے روک رہے ہو؟ تو کہتا ہے، میں اسرائیل ہوں، میں آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وقت بادشاہ کہتا ہے، 1 منٹ کی مہلت دے دو، میں اپنا سارا مال خرچ کر دوں گا۔ 1 منٹ کی مہلت دے دو، میں وصیت نامہ لکھ دوں گا۔ 1 منٹ کی مہلت دے دو، میں اپنا جتنا میرے پاس مال و متاع ہے سب میں غریبوں کو تقسیم کر دوں گا۔ لیکن اسرائیل فرشتہ 1 منٹ کی مہلت نہیں دے گا، اب تمہارا آخری وقت ہو چکا ہے، اب آپ کو مرنا ہی پڑے گا۔ تو روح اسی وقت گھوڑے کے اوپر قبض ہوتی ہے، دھڑم مل کر اسی گھوڑے سے وہ بادشاہ گر کر مر جاتا ہے۔ تو یہ اوقات کی قدر، ان لمحوں کی قدر کرنی چاہیے۔ سال تو گزر رہا ہے لیکن اپنی زندگی بدل نہیں رہی ہے۔ سال تو سال ہاں گزر رہے ہیں، 30 سال سے 36 سال، 40 سال سے 50 سال، سال ہاں سال گزر رہے ہیں، وہی جہالت اپنے اندر ہے۔ نہ قرآن کی تفسیر پڑھنے کا موقع، نہ حدیث مبارکہ سننے کا موقع۔ افسوس تو تب ہوتا ہے فجر کے بعد جب تعلیم ہوتی ہے، تب بھی نماز کے فوراً بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث سننے کا موقع مسلمانوں کو نہیں مل رہا ہے، 2 حدیث سننے کا موقع نمازوں کے بعد سننے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ایسا جاتے ہیں جیسے کہیں جانا ہے، نمازوں کے بعد پڑھی جانی حدیث فجر کے بعد ہو یا عصر کے بعد مسائل کی بات ہو، اتنا ایسا جاتے ہیں جیسا کہیں ارجنٹ کام ہو رہا ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے، عاشق رسول کے دعوے تو ہوتے ہیں لیکن مسجدوں میں جو تعلیم ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، وہاں پر 2 منٹ بیٹھ کر سننے کا موقع مسلمانوں کو نہیں مل رہا ہے۔
तो मेरे अजीजों, बताने का मकसद ये है, मुसलमानों की जिंदगियों से साल साल बदल रहे हैं लेकिन कोई तब्दीली नहीं आ रही है, एक नेकी का इजाफा नहीं हो रहा है, एक गुनाह की कमी नहीं हो रही है। तो हम सब अब इरादा करें कि अपनी जिंदगी के जो बकिया हिस्सा है इसको अच्छे अंदाज से गुजारें। हर वक्त अपना मुहासबा करें कि मेरी ये जिंदगी का वक्त किन कामों में गुजरा है, एक साल गुजर गया है, कितना मैं इन सालों में नेकी का काम किया हूँ, कितने गुनाह मुझसे हुए हैं। अभी रमजान आने वाला है, अभी से गुज़िश्ता रमजान के छूटे हुए रोजे रखने की फिक्र, सर्दी का मौसम है, आराम से रोजे रख ले सकते हैं, लेकिन रमजान गुजर रहे हैं, 1000 रोजों की कोई फिक्र नहीं होती है। इंतहाई अफसोस की बात है। तो दूसरी बात है, न्यू ईयर नाइट के नाम पर जो अय्याशी, जो आवारगी मुसलमानों के अंदर देखी जाती है, कितनी घटिया रस्म है। एक तरफ वहां पर मुसलमान केक काट रहा हो, ग्रीटिंग कार्ड दे रहा हो, एक तरफ मुसलमान क्या कर रहा है, लोगों पर पटाखे सिलगा रहा है, न्यू ईयर की खुशी मना रहा है। वहीं दूसरे तरफ वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, कभी उनको आपने देखा कि वो आप लोगों की ईद डे मना रहे हो, शब कदर नाइट मना रहे हो, लेकिन ये मुसलमान इतना सेक्युलर कैसा बनता जा रहा है कि अपने मजहब को छोड़कर वो न्यू ईयर नाइट मना रहा है, वो न्यू ईयर डे मना रहा है। वहीं अगर उन लोगों को अगर देखा जाए, वो लोग न मुसलमानों के ईदें में शरीक होते हैं। हमको हर बार गुज़िश्ता जुमा में क्रिसमस डे मत बनाओ ये बोलना पड़ा, इस जुमा में न्यू ईयर डे नाइट मत मनाओ ये बोलना पड़ रहा है, दिवाली के मौके पर पटाखे मत सुलगाओ ये बोलना पड़ रहा है, और त्योहार उन लोगों का आता है तो हम मुसलमानों को गाइड करनी पड़ रही है कि मुसलमानों उन लोगों की मुशाबहत मत करो। कभी आपने इस तरह की बात उन लोगों के मजहब में देखा? उन लोग अपने मजमे को बिठा कर ये कह रहे हो कि लोगों, मुसलमानों का रमजान आ रहा है, रोजे मुसलमानों के लिए हैं, आप लोगों के लिए नहीं है, आप मत रोजा रखो। लोगों, शबे कदर की नाइट, शबे कदर की रात आ रही है, ये मुसलमानों की रात है, ये हमारी रात नहीं है। आप इस रात में जाकर उन लोगों की मस्जिदों में मत जाओ। इस तरह से कभी आपने उन लोगों के ग्रुपों में, उन लोगों के बयानात में सुना है? हरगिज नहीं सुना, हरगिज नहीं सुना। क्या सुना? क्या सुना? बल्कि इससे उल्टा सुना। क्या सुना? मस्जिदों को गिराने की बात। कितनी अफसोस की बात है। खुशी मनाई किस लिए जा रही है? एक साल गुजर जाने पर खुशी मनाई जा रही है, मरने के करीब हो रहे हैं, साल गिरा, मतलब क्या है? जिंदगी का एक साल गिर गया, मौत के करीब हो रहे हैं, अजाब जन्नत जहन्नम के करीब हो रहे हैं, फरिश्तों के सवालात के जवाब देने के करीब हो रहे हैं। 60 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो फिर खुशी किस वजह से मनाई जा रही है? दूसरी बात, खुशी मनाने की वजह क्या है? क्या पा लिया 2024 में? किस वजह से खुशी मनाई जा रही है? 2024 की इब्तिदा जनवरी में राम मंदिर बनाए जाने पर खुशी मना रहे हो। 2024 में मुसलमानों की मस्जिदों पर सर्वे किए जाने पर खुशी मनाए जा रहे हो। 2024 पर भोपाल की मस्जिद पर, और इसी तरह संभल की मस्जिद पर, लखनऊ की ईदगाह पर, और इसी तरह बड़े बड़े मदारिस और मसाजिद पर बुलडोजर चलने की बात पर, बुलडोजर चलने की प्लानिंग और कोशिशों पर खुशी मनाई जा रहे हो। या फिर मुसलमानों के पास क्या वजह है कि वो खुशी मनाए 2024 के गुजरने पर? एक साल में कलकत्ता के रेप मर्डर आपने देखा, एक साल में कलीम सिद्दीकी दामत बरकातहू, इसी साल हमेशा के लिए कैद-ओ-बंद का आर्डर मिला है। ये अल्लाह वाले हैं, सफेद रीश वाले, उनको सिर्फ झूठे इल्जामात पर हमेशा के लिए ताउम्र कैद-ओ-बंद कर दिया गया है इस साल में। इस बात पर आप खुशी मना रहे हो। कितना काम इस एक साल में हुआ है। 3 स्टेटों में, 3 स्टेट्स पर हमारे मुखालिफ पार्टी जीतने पर आप खुशी मना रहे हो। क्या वजह है मुसलमान आखिर इस साल के गुजरने पर खुशी मनाने की? बहुत समझना चाहिए क्या क्या हालात हो रहे हैं। उधर से एक तरफ
भगवा लव ट्रैप के जरिए से 6 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियों को मुर्तद किया जा रहा हो। मुसलमान बच्चों के स्कूलों में होमवर्क ये दिया जा रहा है कि आप क्रिसमस डे के दिन क्रिसमस ट्री का डायग्राम कर लाइए। ये होमवर्क दिया जा रहा हो मुसलमान बच्चों को और मुसलमान औरतों को, कैसे उनका जहन बदले, वो अथेइज्म का शिकार कैसे हो जाए, वो खुदा का इनकार कैसे करने लग जाए। ये तरह की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर मुसलमानों का ईमान सल्ब करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। क्या हम इस वजह से खुशी मनाएं? एक तरफ फलस्तीन के वो मासूम बच्चे जो जान दे रहे हैं, कितने बच्चे 40,000 से ज्यादा बच्चों ने बम का शिकार हो गया। कई औरतों का इंतकाल हो गया बम की वजह से, इस्राइल जालिम की वजह से। और फलस्तीन में इतने हालात ये 2-3 साल में गुजरे हैं कि उनके घर मलबे बन गए, उनके मस्जिदें मिस्मार हो गए। ये सब देखकर भी ये मुसलमान कैसा मुसलमान है जो न्यू ईयर आने की खुशी मनाए। फलस्तीन में हालात, वो छोटे छोटे बच्चे, तारीख गवाह है, वो छोटे छोटे बच्चे, वो औरतें जिनका शोहर अभी शादी हुई इंतकाल हो गया, अभी शादी हुई इस्राइल का बम पड़ने पर मर गया, अभी बच्चा पैदा हुआ 10 साल के बाद, लेकिन घर नीचे गिरने पर वो बच्चा मर गया। इतना जुल्म देखने के बाद भी तारीख गवाह है, एक मासूम बच्चा, एक नौजवान लड़की या एक नौजवान औरत या एक नौजवान मर्द या एक बूढ़ा, कोई भी नहीं बता सकते कि वो जालिम इस्राइल के जुल्म से डर कर वो अपना मुसलमान मजहब छोड़कर यहूदी बन गए हो। लेकिन मुसलमान सेक्युलरिज्म के नाम पर गैरों का त्योहार अपनाता है, न्यू ईयर मना रहा है, मुसलमान न्यू ईयर नाइट मना रहा है। दुबई कितनी बेहयाई इस एक नाइट को होती है। लाखों अरबों खरबों की शराब इस एक नाइट पर खर्च की जाती है, पी जाती है। आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट है गुज़िश्ता साल की 140 पर 7 करोड़ की शराब एक नाइट में बेची गई है। और इसी तरह हैदराबाद में 100 करोड़ों की शराब इस एक नाइट में बेची गई है। कितना लोग शराब के अय्याश आवारगी एक नाइट में करते हैं। कितनी पाक दामन औरतों और लड़कियों की नीलाम इज्जतें एक नाइट में होती है। किस पर खुशी मनाए? मेयार क्या है खुशी मनाने का? इतना जुल्म देखने के बाद भी समझ लेना चाहिए हर मुसलमान को न्यू ईयर के खुशी के नाम पर केक काटना, ग्रीटिंग कार्ड देना, न्यू ईयर की मुबारकबाद देना, ये सब हराम है, नाजायज है। तशब्बु अलल कुफ्र की वजह से, गैरों की मुशाबहत की वजह से। मुसलमानों का साल मुहर्रम है, न्यू ईयर मुसलमानों का मुहर्रम है, इस्लामी साल मुहर्रम है। न्यू ईयर जनवरी ये जानवरों का है। जिनका अकीदा आपने भी स्कूलों में पढ़ा है, इंसान पहले बंदर था, तरक्की करते करते इंसान बना। किनका अकीदा है? मुसलमानों का नहीं, उन लोगों का अकीदा है जिनका साल शुरू ही जनवरी से हो रहा है। अजीजों, समझना चाहिए। और इस रात में कितने पटाखे सिलगाए जाते हैं, कितनी औरतों की इज्जतें नीलाम होती है। आप में से हर बाप की जिम्मेदारी है, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। 31st नाइट को सारे घरों के बच्चे नौजवान घर में मौजूद रहे 10 बजे से पहले। हर बाप की जिम्मेदारी है, चाहे इंडिया में हो चाहे कुवैत में हो, वो बाप अपने बच्चों को उस दिन नाइट 10 बजे से पहले अपने बच्चे का जायजा ले कि वो घर में है या बाहर है। कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं इस रात में, कितने गाड़ियां उड़ाई जाती हैं इस रात में, कितने पटाखे सिलगाए जाते हैं। अफसोस तो जब हुआ जब एक बच्चा मदरसे में आता है, पूछा मैं क्या हुआ, क्यों हाथ जल गया है, तो बच्चा कहता है नहीं हजरत पटाखे सिलगा रहा था, हाथ जल गया सिलगाते सिलगाते। ये सब हो रहा है। कितनों की लाशें हुई है 31st नाइट की रात गाड़ियों को उड़ाते उड़ाते।
कितने बच्चे 10th का एग्जाम देना था, न्यू ईयर की नाइट पर दोस्तों के साथ गाड़ी उड़ाने गए हैं, उसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। कितनों नौजवानों की शादी का डेट भी फिक्स हो गया, लेकिन 31st की नाइट गाड़ी उड़ाने में उनका इंतकाल हो गया। कितने बच्चों के बाप, छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरे बाप आ रहा है, नए शादीशुदा हैं, लेकिन दोस्तों के साथ गाड़ी उड़ाने पर या न्यू ईयर नाइट मनाने पर क्लबों में या फिर आवारा बनकर वो फ्लेवरों पर जाते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट होने के पर उन नौजवान बाप जो नए शादीशुदा हैं, कितने बापों का इंतकाल हो गया। उस बेवा औरत पर कितना जुल्म और उस छोटे बच्चे पर कितना जुल्म हुआ होगा कि वो बच्चा अपने बाप की गैर मौजूदगी में बड़ा होगा, वो बीवी अपने शोहर के बेवापन में जिंदगी गुजारेगी, सिर्फ एक वजह के 31st नाइट बाहर जाकर गाड़ी उड़ाकर ये मर गया है एक्सीडेंट की मौत में। तो मेरे अजीजों, नौजवानों को चाहिए कि इस नाइट को अल्लाह की इबादत करें। अगर ये जो बेहयाई 31st नाइट को होती है, अगर इस बेहयाई बदअमली की वजह से अल्लाह को गुस्सा आ जाता, अगर वो अल्लाह अजाब दे देता, तो कई इंसानों के चेहरे मस्क हो जाते, बंदरों और खिंजीर बन जाते उनके गुनाहों की वजह से। कई बस्तियां तबाह और बर्बाद हो जाती इस बेहयाई और बदकारी की वजह से। कई स्टेट तूफान से बिलख जाते, उड़कर तहस नहस हो जाते इस रात की बेहया और बर्बादी की वजह से। लेकिन रहमान की रहमानियत है, उसने अपनी रहमानी और रहमी की वजह से मुसलमानों को मोहलत दी इतने बदअमलियां करते हुए भी कि वो अपना अजाब नाजिल नहीं कर रहा है। तो मेरे अजीजों, समझ लेना चाहिए, न्यू ईयर की नाइट हरगिज अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना, और इसी तरह जनवरी 1 के दिन अपनी लड़कियों को हरगिज बाहर नहीं भेजना है। गवर्नमेंट हॉलिडे रहता है न्यू ईयर पर, लेकिन किसी लड़की को न सोशल क्लास के नाम पर भेजना है, न ट्यूशन क्लास के नाम पर भेजना है, न किसी सहेली से मिलने के नाम पर भेजना है। किसी भी बहाने से इस दिन बच्ची को अपने घर से बाहर हरगिज नहीं भेजना है। एक दौर में तो हम कहते थे यूरोप बेहयाई कर रहा है, अमेरिका और मुंबई, यहाँ इन शहरों में बेहयाई हो रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कड़पा शहर के शरीफ लोग भी अब इन शराफत में नहीं रहे। यहाँ पर भी औरतों की इस्तेहसाली वाकयात, औरतों के केसेस के वाकयात और इसी तरह पाक दामन बच्चियों के दागदार होने के वाकयात इस कड़पा शहर में भी होने के वाकयात सुनते आ रहे हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि न्यू ईयर की नाइट हरगिज न मनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।